मिसाल के तौर पे जब हमारे पास कैटेगोरिकल या टेक्स्ट डेटा हो या कैटेगोरिकल फीचर्स हो तो उसको हम वन हॉट एनकोड करते हैं, तो ये भी एक किस्म की यानी कि फीचर इंजीनियरिंग है। ठीक है, ताकि हमारा मॉडल जो है उसको अच्छा तरीके से मतलब उस डाटा को एक्सेप्ट कर ले। तो फीचर इंजीनियरिंग जो अच्छे फीचर्स जो हैं वो अभी भी हेल्पफुल हैं हमारे उसको सॉल्व करने के लिए डीप लर्निंग मॉडल को। गुड फीचर लेट यू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद फार लेस डेटा। The ability to of deep learning model to learn features on their own relies on having lots of training data available. If you have only few samples, the information value in their features becomes critical. तो अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो फिर फीचर इंजीनियरिंग की सिग्निफिकेंस कम है, लेकिन अगर डेटा थोड़ा है तो फिर आपके लिए फीचर इंजीनियरिंग जो है वो क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आगे आगे जी अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग का जो है वो आपको पता है कि कॉल बैक्स होते हैं। कॉल बैक्स हमने पहले पढ़े थे कि आप अगर एक चला रहे हैं इपॉक्स, इसको पढ़ लेते हैं वैसे। वैसे अर्ली स्टॉपिंग का तो पता ही है, जब कॉल बैक्स लगाते हैं आपका, अगर आपकी एक्यूरेसी अगर एक लेवल से एक तक पहुंच चुकी है और उसके बाद वो कम होना शुरू होती है तो आप वहीं पे स्टॉप कर देते हैं ट्रेनिंग को। तो वहाँ पे आप इपॉक्स को रोक देते हैं ताकि मेरा जो लर्निंग हो चुकी है वो ज़्यादा डिके ना हो, उसकी जो है फर्दर जो है वो डिके या ओवर हीटिंग की तरफ न जाए। In deep learning, we always use models that are vastly over parameterized. They have way more degree of freedom than minimum necessary to fit the latent manifold of the data. This over parameterization is not an issue because you never fully fit a deep learning model. Such a fit would generalize to all. You will always interrupt training long before you have reached the minimum possible training loss. Finding the exact point during the training where you have reached the most generalized fit, the exact boundary between the underfit curve and the overfit curve, is one the most effective thing you can do to improve generalization. आपकी जो ओवरफिट कर्व है और अंडरफिट कर्व है, जब आपने वो देख लिया कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग कर्व जो है वो कहाँ पे क्रॉस कर रही है दूसरे को, तो वो जो है आप जो है उस जगह पे जो है आप उसको रोक दें, मतलब वो उस इपॉक के ऊपर जो है आप उसको स्टॉप कर दें अपने मॉडल को। In the example in the previous chapter, we would start by training our model for longer than needed to figure out the number of epochs that yield the best validation metric, and then would retrain the new model for exactly that number of epochs. This is pretty standard, but it requires to do redundant work, which can sometimes be expensive. Naturally, you could just save your model at the end of each epoch, and once you have found the best epoch, reuse the closest saved model you have. In Keras, it's typical to do this with early stopping callback, which will interrupt the training as soon as validation metrics have stopped improving, while remembering the best known model state. You will learn this callbacks in chapter 7. हमने पिछली बुक में भी किया था callbacks को। तो इसमें होता है कि आपका अगर एक्यूरेसी फर्दर बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो गई है तो आप वहीं पे स्टॉप कर देते हैं ताकि जितना लर्निंग हो चुकी है मैक्सिमाइज आपके पैरामीटर लर्न हो चुके हैं तो वो फर्दर डिके ना हो ट्रेनिंग, बस वहीं पे स्टॉप हो जाए, तो वही आपकी बेस्ट होती है। regularizing your model, अच्छा जी, regularization techniques are set of best practices that actively impede the model's ability to fit perfectly on the training data, with the goal of making the model perform better during validation. This is called regularizing the model because it tends to make the model simpler, more regular, its curve smoother, more generic. Thus, it is less specific to the training set and better able to generalize by more closely approximating the latent manifold of the data. तो आपका रेगुलराइजेशन से क्या होगा कि आपकी कर्व जो है वो स्मूथ हो जाएगी,
जो आउटपुट कर्व जो आपकी होती है, जो कि लॉस कर्व है, और जेनेरिक हो जाएगी, यानी कि जनरलाइज बेटर करेगी आपके डेटा के ऊपर। Keep in mind the regularization model in the process that should always be guided by an accurate evaluation procedure. You will only achieve generalization if you can measure it. Let's review some of the most common regularization technique and apply them in practice to improve the movie classification from chapter 4. Reducing the network size. तो अगर आपका नेटवर्क साइज बहुत बड़ा है तो हमने उसमें कितना किया था नेटवर्क साइज, IMDb में पहले इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं और IMDb का ये आपका था नेटवर्क साइज। ये था ये तो वही है। अच्छा, लोअर कैपेसिटी ये आपका इसमें से ये पुराना मॉडल था, मतलब जो उसी चैप्टर 4 में था, 16 और 1। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि इसको 4 कर दिया, 4 यूनिट्स। ये तो खैर आउटपुट यूनिट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ये कर्व्स हैं, ठीक है, ये लॉस है, वैलिडेशन लॉस, इस तरह ये जा, तो ये आपका बढ़ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं वहाँ जाके जब इसने ये काम किया इसको, तो ये लॉस आपके पास इम्प्रूव हो गया। तो यानी कि लॉस यहाँ पे पहले कम हुआ, फिर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन ये 0.4 तक, 0.43 तक ऐसे जाके यहाँ पे रुक गया। तो लेकिन जो बड़ा नेटवर्क था जिसमें आपके पास 16 यूनिट्स थे, तो उसका जो लॉस वो आपके जाके जाके 0.7 पे जाके रुका, और एक्यूरेसी जो है आपकी 0.85 तक आके रही। लेकिन यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी ये जो है, ये नज़र आ रही है आपको वैलिडेशन। अच्छा ये लॉस, लॉस तो अच्छा ये लॉस है, लॉस, एक मिनट। अच्छा ये है ओरिजिनल मॉडल और ये है लार्जर लार्जर मॉडल। लेकिन ये एक्यूरेसी है, ये लॉस है। चलो इसको रन करके देखते हैं अपने पास हमारी शीट में ये रही। तो यहाँ पे ये वाला है इसका। डीप लर्निंग वाला लैपटॉप चलाना पड़ेगा, नहीं ये भी तेज़ है। तो ये एक्यूरेसी आपके पास 0.86 पे आके ठहरी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी। और आपके ये मॉडल दूसरा, ये लोअर कैपेसिटी आपने यहाँ पे 4 यूनिट्स कर दी हैं, तो उसको देख लेते हैं वो क्या हमारे साथ करता है।
ये रुकी थी 86.86 पे, तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन एक्यूरेसी इसकी 87 पे रही है, 87। और लॉस जो है आपका 0.47, यहाँ पे इसका लॉस कितना था, ये लॉस इसका ज़्यादा था 0.69, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुई। ठीक है, थोड़ा बेहतर हुआ आपका कंपेयर टू चैप्टर 4। ठीक है, इसकी अगर कर्व बनाना चाहें तो वहाँ से आप वो पेज कॉपी करके डेट आपका जो कोड है उसका, इसको सेव, अच्छा तो ये वाला स्मॉलर मॉडल, हाँ ये स्मॉलर मॉडल है ना, तो इसका आपको वहाँ से लेना पड़ेगा कर्व, ये ये 0.48 पे आके यहाँ रुकी। तो बस थ्योरी है ये, आप पढ़ लीजिएगा अपने फारिग टाइम में, मेरा मसला नहीं है। फर्दर वो क्या कहते हैं कि now let's add our network benchmark the model that has much more capacity, far more than the problem warrants, while it is standard to work with the model that, अब हम उसकी बहुत ज़्यादा उसमें वो डाल रहे हैं, मतलब 512 कर दी, पहले 16 थे, फिर 4 किए, अब बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उसकी मेमोराइजेशन कैपेसिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उस पर क्या असर पड़ता है। तो उससे जो है ये असर हुआ है कि आपका लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे अपने पास करके, क्या है, लार्जर मॉडल, ठीक, लार्जर मॉडल, ये टाइम लेगा। तो बिगर मॉडल फेयर्स कंपेयर्ड विद द रेफरेंस मॉडल, ये आपका ओरिजिनल मॉडल था जो 16 के साथ था, और ये आपका बहुत ज़्यादा आपने यूनिट डाल दिए 512 यूनिट्स, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी लॉस बढ़ गई। तो आपके पास यहाँ ये 16 वाला जो था ना, 16 उसके साथ, 16 यूनिट्स के साथ वो ये था, ये, तो वो आपका ये वाला विद 16 यूनिट्स, ये 0.69 यहाँ तक आया ना, ये 0.69 ये, तो इसको कंपेयर कर रहा है जो 512 यूनिट्स का लगाया आपने ये वाला, तो उसका ये वाला कर्व है, ये भी हम देखते हैं हमारा वो चल रहा है। तो सर वो एकदम 512 पे क्यों चला गया? बीच की वैल्यूज भी तो ले सकते थे। वो आपको शो कर रहा है ना कि इससे क्या नुकसान होगा, मतलब अगर आप ज़्यादा यूनिट्स लगाते हैं तो उससे क्या नुकसान, ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूनिट लगाते हैं तो क्या नुकसान होगा।
ये अब यहाँ पढ़ लेना, द बिगर मॉडल स्टार्ट्स ओवर फिटिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ठीक है, जो आपका बड़ा मॉडल है वो ओवर फिटिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है ना लर्न कर लेता है यानी ट्रेनिंग डाटा को, क्योंकि 512 यूनिट लगे हुए हैं, 512 यूनिट जो है ना वो उसकी हर इनपुट आपकी जो भी आ रही है ना ट्रेनिंग डाटा, उसकी हर पैटर्न को, हर चीज को मेमोराइज कर लेगा, तो ओवर फिटिंग स्टार्ट हो गई। ओके सर। अब एक ना एक्यूरेसी 1 हो गई है इसकी ट्रेनिंग डाटा की। चलो, after just one epoch and it is overfits too much more severely. Its validation loss is also noisier. It gets training loss near zero very quickly. The more capacity the model has, the more quickly it can model that training data, resulting in low training loss, but more susceptible it is to overfitting, रिजल्टिंग इन लार्ज डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन लॉस। तो आपके पास वैलिडेशन और ट्रेनिंग लॉस में बहुत फर्क आ जाता है एकदम से। वो यही आपको ये नजर आ रहा है इधर। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा। बताएं सर। हाँ, ये क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं तो उसमें हमें कैपेसिटी ऑफ द मॉडल को, जिसमें लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि अगर आपका डाटा या आपका प्रॉब्लम इन हैंड ऐसा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशनल पावर की ज़रूरत है, जिस तरह इमेज प्रोसेसिंग है, उसमें तो ये इट मेक सेंस कि आप उसके नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ाएं। मगर अगर आपका डाटा इतना डिमांडिंग नहीं है तो फिर वो आपका मॉडल, अगर आप उसके रिप्रेजेंटेशन पावर को बढ़ाते हैं या उसके दूसरे लफ्ज़ों में उसकी नंबर ऑफ लेयर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाते हैं, तो वो बहुत बारीकियों में लर्न करना शुरू कर देता है, बारीक बारीक पॉइंट्स को भी, और बहुत टाइट उसकी फिटिंग हो जाती है और वो ओवरफिट हो जाता है सीधा सीधा बहुत जल्दी। ये जबरदस्त। समझाने के लिए ना। अच्छा, और दैट फिर मीन्स के आपका प्रॉब्लम इन हैंड आपको क्या है, सही, अगर दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स आप अगर आप मेक सेंस। कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम है तो उसमें आप लेयर्स को यस, बढ़ा सकते हैं ज़्यादा। अच्छा, सही, लेयर्स को भी बढ़ा सकते हैं और आप यूनिट्स को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूनिट्स, डेटा टेक्सचुअल डेटा है, हाँ, टेबुलर डेटा है, तो उसके अंदर आप मतलब यानी कि एवरेज पे रखें या कम रखें उसको, यूनिट्स नंबर को, ऑफ यूनिट्स कम रखें दूसरे में। नंबर ऑफ यूनिट्स कम रखें और लेयर्स भी कम रखें। बिल्कुल, लेयर्स आस्ता आस्ता सही। बढ़ाएं मगर यूनिट्स कम ही रखें तो ज्यादा बेहतर है। ये इट डिपेंड्स करता है कि फीचर्स कितने हैं, आपका फीचर सेट कितना बड़ा है। अगर फीचर सेट बड़ा है तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ा सकते हैं, और सॉरी, नंबर ऑफ इनपुट यूनिट्स बढ़ा सकते हैं। यस, अगर 40 आपके फीचर्स हैं तो यकीनन 64 आप सेफ हैं, उसमें कोई इतनी ज्यादा कबाहत नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी जो कर्व है, कर्व बनाने की जरूरत तो नहीं है, रहने देते हैं, कर्व बनाने की जरूरत तो नहीं है शायद। बुक में बनी हुई है तो उसको बता देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम एट हैंड जो था दैट वाज नॉट टू कॉम्प्लेक्स, और आपने उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी तो बहुत जल्दी ओवरफिट कर गया। हाँ जी, ये आपकी इपॉक यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो ये पहली इपॉक से ही जो है इसका लॉस जो है एकदम से ही बढ़ना शुरू हुआ है, फिर बढ़ता ही चला गया। बिल्कुल। अच्छा जी, आके आ गया जी आपके पास रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन जो है वो दो किस्म की है, L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन। इसको जो है कितना बड़ा टॉपिक है, बस है तो ये इतना ही है यहाँ तक, चलो पढ़ लेते हैं। तो उस होता क्या है जी, यू मे बी फेमिलियर विद प्रिंसिपल ऑफ Occam's razor, given two explanations for something, the explanation most likely to be correct is the simplest one, the one that makes fewer assumptions. The idea also applies to method models learned by a neural network. Given some training data and a network architecture, multiple sets of weight values, multiple models could explain the data. Simpler models are less likely to overfit than complex ones.
मतलब जो सिंपलर मॉडल होगा और सिंपलर रिप्रेजेंटेशन होगी वो जो है ओवर फिट नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो होंगे, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स जो होंगे, और बहुत ज़्यादा लाजमी बात है जितने आप यूनिट्स लगाएंगे उतने ज़्यादा मॉडल के वेट्स बढ़ेंगे, मॉडल के पैरामीटर बढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना सिंपलर मॉडल होगा उतना ही जो है उसकी जो मतलब प्रोबेबिलिटी है कि ओवर फिटिंग की वो कम होगी, जनरलाइजेशन पावर, जनरलाइजेशन ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है। बिल्कुल। A simple model in this context is a model where the distribution of parameters values has less entropy, or a model with fewer parameters as you saw in the previous section। मतलब less entropy का मतलब है कि मॉडल, ऐसा मॉडल जिसके पैरामीटर थोड़े हों, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि जिसके अंदर हमने 16 का लगाया था, फिर हमने 4 का लगाया, फिर हमने 256 का लगाया, तो 16 से बेटर जो है वो 4 वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, 4 यूनिट्स वाला। तो उसके अंदर फ्यू पैरामीटर थोड़े थे, लेकिन उसकी जनरलाइजेशन पावर 16 वाले से भी ज़्यादा थी और 256 वाले से तो ज़्यादा थी। Thus, a common way to mitigate overfitting is to put constraints on the complexity of a model by forcing its weights to take only small values, ठीक है। आपके जो वेट्स हैं, जो आपके पैरामीटर्स वेट्स हैं, अगर उसकी वैल्यूज स्मॉल होंगी तो वो जो है ओवरफिटिंग को मिटिगेट कर सकते हैं, which makes the distribution of weights values more regular. This is called weight regularization, and it's done by adding the loss function of the model, adding to the loss function of a model a cost associated with having large weights। जिस मिसाल के तौर पे अगर किसी पैरामीटर के जो वेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हैवी, बहुत हाई वैल्यूज आ रही हैं, तो उसको हम कम करते हैं, ठीक है। आपका ये रेगुलराइजेशन है, L1 रेगुलराइजेशन या L2 रेगुलराइजेशन, जिस पैरामीटर के जो वेट्स हैं उस बहुत हाई हो गए हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो उनको जो है आप ज़ीरो कर देंगे या बहुत कम वैल्यूज कर देंगे, ठीक है। वो आप इस तरीके से होती हैं। This is called weight regularization, and it's done by adding the loss to the loss function of model a cost associated with having large weights. This cost comes in two flavors। तो वो जो आप एक किस्म की पेनल्टी देते हैं, एक पेनल्टी लगाते हैं, जिस जो वेट ज़्यादा हैवी हो जाएं, जो पैरामीटर के वेट्स ज़्यादा हैवी हो जाएं, ज़्यादा बढ़ जाएं, उनको पेनल्टी लगाते हैं, पेनलाइज करते हैं। वो पेनलाइज जो है वो दो तरह की पेनल्टी होती है। एक पेनल्टी है L1 रेगुलराइजेशन, दूसरी है L2 रेगुलराइजेशन। The cost added is proportional to the absolute values of the weights coefficient, L1 norm of the weights। L1 norm जो है आपका ये होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है L नॉर्म, L1 नॉर्म। और L2 रेगुलेशन जो है कि द कॉस्ट एडिड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेट्स कोफिशिएंट। L2 regulation is also called the weight decay in the context of neural network. Don't let the different name confuse you. Weight decay is mathematically the same as L2 regularization। तो आप ये दोनों किस्म की रेगुलराइजेशन लगाते हैं अपने ओवर फिटिंग को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ओवर फिटिंग होती क्यों है? ओवर फिटिंग इसीलिए होती है कि आपके कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं, बहुत ज़्यादा पैरामीटर होते हैं, ठीक है। जब आपके पैरामीटर बहुत ज़्यादा हो जाएं, मॉडल कम्प्लेक्स हो जाए, आपके पैरामीटर्स की वैल्यू बहुत हाई हो जाएं, तो वो दैट मीन्स उसने ओवर फिटिंग करना शुरू कर दी है, यानी कि पैटर्न बहुत डीप जाके लर्न करना शुरू कर दिए हैं ट्रेनिंग डाटा की। तो उससे जो है आपकी जनरलाइजेशन पावर कम हो जाती है मॉडल की। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके जो वैलिडेशन डेटा है, वैलिडेशन के ऊपर जो है उसकी एक्यूरेसी कम आ रही होगी, तो वो ओवर फिटिंग हो जाती है। और उस ओवर फिटिंग को मिटिगेट करने के लिए ये दोनों तरीके लगाए जाते हैं कि जो वेट बहुत ज़्यादा होते हैं उनको कम किया जाता है। Incorrect weight regularization added by passing weight regularization instances to the layer as keyword arguments।
let's add L2 weight regulation to our initial movie review classification model. तो आपके पास यहाँ पे जो 16 वाला जो था ना यहाँ चैप्टर 4 में, उसके ऊपर यहाँ लगा रहा है ये L2 रेगुलराइजेशन, इसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखें आप ये 16 वाला, इसके अंदर उसने एक पैरामीटर डाला जिसको कर्नल रेगुलराइजर कह रहा है और रेगुलराइजर डॉट L2, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे 16 के साथ भी उसने उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया L2 रेगुलराइजर और फिर उसको ट्रेन किया। तो आपके पास अब देख रहे हैं कि वैलिडेशन लॉस जो है पहले कितना था, ये 0.7 तक पहुंच गया था लॉस। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो वैलिडेशन लॉस विद L2 रेगुलराइज मॉडल, हाँ ये देख रहे हैं यहाँ डॉटेड लाइन जो है ना ये उसकी पुराने वाले की है, और ये सॉलिड लाइन है ये देखें यहाँ पे ये कम होगी, बहुत कम, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 0.3233 का फर्क पड़ गया ये लॉस के अंदर, इसमें और इसमें। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बताएं। एक चीज ये कि रेगुलराइजेशन को आप इस तरह समझने कि ये रेगुलेट करता है चीज़ों को ना, जिस तरह आपके प्रेशर रेगुलेटर्स होते हैं, यानी वो करता क्या है कि आपकी एक मीन वैल्यू से आगे पीछे अगर प्रेशर ज़्यादा आता है तो उसको, या कम आता है, कम तो शायद नहीं मगर ज़्यादा प्रेशर को उसको एक रेगुलेट करता है, एक लिमिट के अंदर उसको रखता है। तो ये भी वेट की जो चेंजेस है ना, जो लॉस फंक्शन के उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे अपने वेट्स को अपने जो चेंज करना होता है उसकी बहुत ज्यादा चेंज को रेजिस्ट करता है और उसको एक मीन वैल्यू के इर्द गिर्द ही उसको चेंज करने की इजाजत देता है, जहां तक मैं इस चीज को समझता हूँ। तो यानी अब्रप्ट चेंजेस इतनी नहीं वेट्स की आती कि वो बिल्कुल वो मॉडल आउट हो जाए, आस्ता आस्ता उसको चेंज करने को एक यानी करता है, उसकी मजबूर करता है उसको कि आस्ता आस्ता इसकी चेंज आए वेट्स की। क्यों आप ऐसे कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि ना अगर आपके ट्रेनिंग डाटा के अंदर कोई ऐसा फीचर है जो बार बार आ रहा है, ठीक है, बार बार उसको मॉडल को एक्सपोज हो रहा है, तो मॉडल उस फीचर को इम्पोर्टेंस देने लग जाएगा और उसके वेट्स को इंक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। उस फीचर, एक पर्टिकुलर फीचर को, हो सकता है वो फीचर जो है आपका मतलब जो है कि उसमें मौजूद ना हो, उस डाटा में जो आपका टेस्ट डेटा है या वैलिडेशन डेटा है। तो उस जो बहुत ज़्यादा फीचर है, यानी कि वेट्स बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो वो उनको फिर रेगुलेट करता है, जैसे सर ने कहा है, उनको रेगुलेट करके एक मतलब कम वैल्यू पे ले आएगा ताकि वो आपका मॉडल जो है ना स्मूथ कर, ट्रेनिंग, यानी कि स्मूथली हाँ प्रोग्रेस करे। जी जी, उसको जो है ना ज़्यादा लर्न करना शुरू कर दे उस पर्टिकुलर फीचर को, जिसके के वो एसोसिएटेड वेट्स हैं, उस वेट्स को वो कम कर देता है, ठीक है। इसकी एक सादा सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक शादी हॉल है, ठीक है। अब जी कोई बंदा है जी, उसने वो आया जी किसी बड़ी गाड़ी पे आया जी, मर्सिडीज पे आया है, और उसको जनाब आप बहुत इंपॉर्टेंस देने लग जाएं और आप उसको बहुत अच्छे सोफा पे बिठाएं, और तो क्या होगा यार, वो एक ना मतलब क्या होगा, वो ओवर फिटिंग हो जाएगी, ओवर फिटिंग कंडीशन। कैसे? आपने उसको बहुत वेटेज दे दी बंदे को, ठीक है, बहुत वेटेज दे के आपने उसको बड़ा अच्छा, यानी कि दूसरों को बिल्कुल कमतर कर दिया, उसको बहुत, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा दी। तो अगर आपके अंदर कोई बड़ा ईमानदार सा बंदा है, वो कहेगा नहीं यार ये तो सही नहीं है, वो एज अ रेगुलाइजर काम करेगा, वो कहेगा नहीं भाई सबको बराबर बिठाओ, ठीक है, किसी को ऐसे डिक्लाइन ना करो, किसी को जो है ना उसकी इज्जत नफ्स को जो है ना मजबूर ना करो, उनको भी उनके बराबर बिठाओ, ठीक है। उसकी वेटेज को कम कर दी, उस अमीर आदमी की वेटेज को कम करके आपने यानी कि सब के सारे तबकों को बराबर में बिठा दिया, तो ये एक रेगुलराइजर हो गया। तो इस तरीके से ये जैसे एक जटाकी सी एग्जांपल दी मैंने। सही बात है, ठीक है। लेकिन सर बड़ी एक्सीलेंट दी है। हम्म, एग्जाम्पल अच्छी थी सर।
सर जी सिंगल जो लड़के होते हैं उनके सामने शादी की बात ना किया करो सर। शादी की ये बेचारे, क्यूरियोसिटी होती है या डर लगता है? नहीं नहीं, ये क्यूरियोसिटी है क्योंकि इनके भाई की शादी होने वाली है और ये कह रहे हैं कि एक दीवार गिराऊं जल्दी से और दीवार फलांग के आगे जाऊं। तो मैंने, बस ये बेचारे इसी इंतजार में बैठे हैं। इनके इंतजार भाई की सर शादी बहुत मार। सारी चीज है। अच्छा, आगे चलते हैं सर। थोड़ा सा टाइम भी रह गया है, 5 मिनट, इसको ख़त्म कर लें यहाँ तक। मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके देखें कितना का रह गया है, अगर तो बस ये ड्रॉप आउट तक ज्यादा है तो ना, इसको ड्रॉप मेरे आउट ख्याल के खत्म बाद में करते करें। हैं। हाँ। हाँ। तो ये हो गया। इसमें आप L2 रेगुलाइजर ऐड करके फिर उसने आपको दिखा दिया कि ये ये हो रहा है। अब इसमें इन प्रीडिक्टिंग लिस्ट L2.002 मींस एवरी कोएफिशिएंट इन द वेट मैट्रिक्स ऑफ द लेयर विल बी एड 0.02 मल्टीप्लाइड बाय वेट कोएफिशिएंट वैल्यू रेज टू पावर 2 टू द टोटल लॉस ऑफ द मॉडल। होगा क्या कि वो इसका मतलब असल में क्या है, वो अब ये बता रहा है कि ये जो हमने टर्म ऐड की है इसका मतलब असल में क्या है। इसका मतलब ये है कि वो वेट, जो वेट्स होंगे उसका स्क्वायर लेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा 0.002 के साथ, फिर उसको टोटल लॉस में ऐड कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स असल में ये इसकी जो वेटेज है उसको कम कर रहे हैं। यानी इसकी जो वेटेज है, अगर आपने इसका स्क्वायर लिया और इसको फिर आपने इसको 0.002 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली जो है आप उसको टोटल लॉस में जब ऐड करेंगे तो वो उसका लॉस कम कम करेगा। मतलब लाजिम बात है, आपने इसको, सर ये एक्चुअली बढ़ गया या कम हो गया है जब आप ऐड करेंगे तो? ये लॉस को थोड़ा सा बढ़ा देगा ताकि जो है ना वेट थोड़े से कम ऑप्टिमाइज हो। अच्छा, सही सही सही, बिल्कुल सही। लॉस को बहुत बढ़ा देगा। माइन्यूटली ऐड करता है उसको। और सही दूसरी है, तरफ वेट्स की जो एवरेज स्प्रेड है ना, उसके इक्विवेलेंट उसको करता है। सही। Note that because this penalty is only added at training time, the loss for this model will be much higher at training than the test। अच्छा, तो ट्रेनिंग के वक्त जो है ट्रेनिंग का जो लॉस है वो बढ़ाता है, ताकि आपका जो टेस्टिंग या वैलिडेशन के टाइम पे जो है वो लॉस कम आए। ठीक है, बात बात समझे? यानी ट्रेनिंग का लॉस बढ़ाता है, ट्रेनिंग का लॉस बढ़ाता है ताकि टेस्टिंग का लॉस आपका कम आए, जनरलाइजेशन बढ़ जाए। Figure 5.9 shows the impact of L2 regulation penalty। ये हमने देख लिया। As you can see that L2 regulation has become much more resistant to the overfitting than the reference model, even though both models have the same number of parameters। पैरामीटर सेम होने के बावजूद आपके जो लॉस है वो कम हो गया है ये सॉलिड लाइन में। ठीक है, एज एन अल्टरनेटिव टू L2 you can use one of the following Keras weight regulator। L1 L2 या आप बोथ यूज़ कर सकते हैं। ये भी यूज़ कर सकते हैं इकट्ठा, L1 अकेला भी यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ करके देखें इसको डिफरेंट तरीक़ों से, अकेला ये यूज़ करें या दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करें तो क्या आता है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं इसमें, इस नोटबुक में। यहाँ पे आप बस ये रिप्लेस कर दें इधर ये चीज़, तो देखें करके क्या आता है। ठीक है, कभी ये लगाएं कभी ये लगाएं। So note that weight regularization is more typically used for smaller deep learning models। Large deep learning models tend to be over parameterized, that imposing constraint on weight value hasn't much impact on model capacity and generation। In these cases a different regularization technique is preferred, that is dropout। अगर small आपका मॉडल छोटा हो तो L1 L2 आपका काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके मॉडल बहुत बड़ा हो तो आपको ड्रॉप आउट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉप आउट आप यूज़ करेंगे। तो ये आप यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो कल इंशाल्लाह फिर करेंगे नेक्स्ट, कल नहीं, अब हम कोई किसी प्रॉब्लम को ना, कोई हम कुछ टॉपिक सजेस्ट करें कल ना, आएंगे ना,
तो टॉपिक हर बंदा लेके आए, तो जो उसमें से बेस्ट लगेगा ना तो वो हम स्टार्ट करेंगे। मैं भी इंशाल्लाह एनएलपी के अगर कुछ लेके आए, एनएलपी का स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू और फेक कल न्यूज पे कर लेते हैं। फेक न्यूज़ और ट्रू न्यूज़, जी सब ये उस अच्छा पर अच्छा, चलें ठीक है, चलें ठीक है। है। वो कोई नोटबुक है या कोई है एग्जांपल है तो वो लेके आए, फिर उस पर काम करते हैं। सर किस सर लेवल के होने चाहिए एनएलपी के प्रोडक्ट्स? एगल लेवल के। यार अब प्रोफेशनल लेवल के लेके आए, अब बच्चों वाले तो ना लेके आए ना। 2 ठीक साल हो गए ठीक हमें इस ठीक हो प्रश्न गया। की हाँ, तैयारी करते हुए। अब हम कहें यानी जी ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, फिर मुश्किल रिसर्च तो लेवल के हो जाए। फिर रिसर्च लेवल के हो जाएं, लेकिन सॉल्व हो, हम खुद से ना अभी खुद से नहीं ना कर सकते। सब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, उसमें दो दो तरह के CSV फाइल्स हैं, एक फेक हैं और एक ट्रू फाइल्स हैं। उन दोनों को मतलब चलें वो करना है। सर ये क्या शेयर लेंगे फिर? कीजिएगा ना कल, अभी टाइम खत्म हो गया है। कल चलें शेयर ठीक। कीजिएगा ना, फिर बल्कि पहले शेयर मुझसे शेयर कर लीजिएगा ताकि पहले से डिसाइड कर लें, क्योंकि फिर आते हुए फिर आधा घंटा लग जाएगा डिस्कस करने में, फिर वो मसला है, टाइम वो ज़ाया होगा। मैम आयशा कह रही है वही कर देंगे। ठीक मुझे है। भेज देंगे ना, मैं फिर देख